قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم بطور کلیسیا خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں روزمرہ زندگی کے آداب، the manners for the daily life۔ کچھ چیزیں جو ہم سیکھ چکے ہیں ان میں پہلی بڑی بات، والدین انسان کے پہلے استاد ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو باتیں سیکھیں کہ کھانے پینے سے متعلق خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے، کہ اس کے آداب کیسے ہونے چاہیے، میل ملاقات، ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، کسی کے گھر جانا، کسی کا ہمارے گھر آنا کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ باتیں ہم نے سیکھی۔ پھر ہماری گفتگو، ہماری بات چیت ایک دوسرے سے جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کنورسیشن ہوتی ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے، خدا کا کلام اس حوالے سے کیا سکھاتا ہے۔ اور پھر لین دین کے معاملات، ہمارا دنیا میں بنا ہوا ہے لینا دینا، ایک شخص سے لے کر ملکوں اور قوموں تک سب کا لینا دینا ایک دوسرے سے بنا ہوا ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، لین دین کے معاملے میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر پچھلی بار ہم نے سیکھا کہ ہم سبوں کو خدا نے کوئی نہ کوئی اختیار دیا ہے، کوئی نہ کوئی اتھارٹی دی ہے، بھلے گھر میں دی ہے یا اپنے کاروبار میں دی ہے، اپنے کام کی جگہ پر، اپنی کمپنی میں، اپنے دفتر میں دی ہے، یا کلیسیا میں دی ہے، یا قوم یا قبیلے پر یا معاشرے میں۔ خدا نے ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی اختیار ضرور دیا ہوا ہے، اور اپنے اختیار کو ہمیں کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے خدا کے کلام کی روشنی میں، یہ باتیں ہم نے سیکھیں۔ اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جنہیں خدا نے اختیار دیا ہوا ہے ہمارے اوپر، جو ہمارے اوپر اتھارٹیز ہیں، جو ہمارے اوپر خدا نے لوگ مقرر کیے ہیں اتھارٹی دے کر، اختیار دے کر، ہمیں ان سے کس طرح برتاؤ رکھنا ہے، ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا گیا ہے کہ جن کو خدا نے مالک بھی بنایا ہے وہ بھی یہ جانیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی مالک ہے۔ تو خدا نے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر کسی نہ کسی کو مختار، مالک، افسر، حکمران، رولر، اتھارٹی مقرر کیا ہوا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ جنہیں خدا نے ہمارے اوپر اتھارٹی دی ہے، اختیار دیا ہے، ہمارا ان سے برتاؤ، ان سے ہماری ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے۔ پہلی بات، ہم انہیں خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے جانیں۔ جنہیں خدا نے ہمارے اوپر مقرر کر دیا ہے، خدا کی مرضی تھی وہ ہمارے اوپر مقرر ہوں۔ خدا کا اختیار ہے، کیونکہ خدا ساری کائنات کا مالک ہے۔ خدا کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی انسان کو کون سی اتھارٹی، کون سا اختیار سونپتا ہے۔ خدا کے اختیار میں ہے، خدا کی قدرت میں ہے، خدا کی اتھارٹی میں ہے، اس کی ساورن ول ہے، خدا کی آزاد مرضی ہے کہ وہ کسی انسان کو حاکم بنا دے، کسی کو محکوم بنا دے، کسی کو رولر بنا دے، کسی کو سبجیکٹ بنا دے، کسی کو حکمران بنا دے، کسی کو رعایا بنا دے، کسی کو افسر بنا دے، کسی کو ماتحت بنا دے۔ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کیا بنائے۔ تو ہم تمام حکمرانوں کو اپنے اوپر، جو لوگ ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے ہیں، اختیار کے ساتھ خدا نے انہیں ہمارے اوپر نافذ کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ ہم پہلی بات یہ جانیں کہ وہ خود سے نہیں بنے، خدا کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ اس زمین پر کوئی اختیار حاصل نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے لیے راستہ تیار نہ کرے، جب تک خدا اس کے لیے دروازے نہ کھولے، جب تک خدا اس کے لیے حالات مناسب نہ بنا دے، اپنے آپ کوئی حکومت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو اختیار نہیں لے سکتا۔
पूरे का पूरा मिस्र बुत परस्त था। वो समझते थे कि जो फिरौन तख्त पर बैठा है, तमाम देवियों और देवताओं की ताकत उसमें उतरती है, और वो हमारा देवता है, वो हमारा माबूद है, वो हमारा खुदा है। फिरौन की प्रस्तिश होती थी, उससे देवताओं का अवतार समझते थे कि ज़हूर होता है, देवता इसमें ज़हूर करते हैं। पूरा मिस्र कई माबूदों को मानता था, उनमें सिर्फ एक शख्स था जो सिर्फ सच्चे खुदा को मानता था, जेल में पड़ा था। एक बड़े अफसर की बीवी की तरफ से लगाए गए इल्जाम के बाद सजा पा रहा था। अगर वो कोशिश करता कि मैं मिस्र पर हाकिम लग जाऊं, तो उसको कोई मदद ना मिलती। वो जलसे करता तो कोई उसकी बात सुनने को तैयार ना होता, वो धरना देता तो कोई उसके साथ ना होता, वो तो अकेला था उधर। उसका मजहब, उसका रिलीजन, उसका फेथ, उसका धर्म, पूरे मिस्र में वो अकेला शख्स था जो उस ईमान, उस फेथ, उस अकीदे, उस मजहब का शख्स था। कोई उसका रिश्तेदार नहीं था, कोई उसकी जात बिरादरी नहीं थी, कोई उसके लिए अच्छा सोचने वाला नहीं था। वो कोशिश भी करता तो हुक्मरान नहीं बन सकता था, लेकिन खुदा ने मुमकिन कर दिया, उससे कैद से निकाला। इसको नहलाओ धुलाओ, साफ कपड़े पहनाओ, फिरौन के सामने पेश करो। और फिरौन ने, जो चंद मिनट पहले कैदी था, सजा याफ्ता था, मुजरिम था, गुलाम था, मिस्र में उसकी कोई इज्जत ना हो सकती थी, अगले ही लम्हे वो पूरे मिस्र का हुक्मरान था। और फिरौन ने कहा कि मैं चूंकि तख्त का मालिक हूं, तो तुझसे बड़ा सिर्फ मैं रहूंगा, बाकी मिस्र का हर एक घुटना तेरे आगे झुकेगा, कोई भी हाथ या पांव तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलाएगा। ये खुदा का इख्तियार है कि वो कैद से एक गुलाम को, एक कैदी को, एक सजा याफ्ता को, एक इब्रानी को, जो उनके बुतों देवताओं को भी नहीं मानता, उनके ईमान का भी नहीं है, उनकी नस्ल और कौम और खून और रंग का भी नहीं है, उसे उठाकर उनका हुक्मरान कर दे, और पूरा मिस्र सिवाय एक फिरौन के उसके आगे घुटने टेके। ये खुदा का इख्तियार है। खुदा जिसको हुक्मरान बनाता है, जिसको अथॉरिटी देता है, जिसको ताकत देता है, जिसको ये तौफीक देता है कि वो हुक्म चलाए, वो गवर्न करे, वो रूल करे, हमारा काम है उसे कबूल करना कि ये खुदा की तरफ से। क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। हुकूमतें घर में हैं, ये हम पिछले जुमे सीख चुके। घर में हुकूमत है माँ की, बाप की, बुजुर्गों की, जो हमारे घर में बड़े हैं। हमारी कंपनी में जो मालिक हैं, या जो जनरल मैनेजर हैं, या जो मैनेजर हैं, फिर फोरमैन हैं, फिर सुपरवाइजर हैं, उनकी हुकूमत चलती है अपने सारे मुलाजमों पर। कारोबार में जो मालिक है, चाहे किसी भी तरह का कोई बिजनेस है, उसमें मालिक है, उसका हुक्म चलता है, मुलाजम उसका हुक्म मानते हैं। पूरे मुल्क में खुदा ने हुक्मरान मुकर्रर किए होते हैं, हर एक कौम में, हर एक मुल्क में, सल्तनत में, किंगडम में, कंट्री में। सदर कह लो, बादशाह कह लो, वजीर आजम कह लो, चांसलर कह लो, मलिका कह लो, शाह कह लो, कोई भी उनका नाम और ओहदा कर लो, लेकिन खुदा ने उन्हें मुकर्रर किया है। और फिर हर एक कलीसिया में खुदा ने एक पासमान और उसके साथ एक टीम मुकर्रर की होती है कि जिन्हें इख्तियार होता है कि वो कलीसिया में फैसले करें और तमाम कलीसिया को अपने साथ लेकर चलें। ये सब खुदा की तरफ से मुकर्रर किए हुए हैं, और हमारा फर्ज है, हमारा काम है। बाइबल हमसे ये तकाजा करती है, ये रिक्वायरमेंट है हमसे खुदा की, कि हम उन्हें इस तरह से कबूल करें कि ये खुदा की तरफ से, कि अपने आप इनमें से कोई भी हम पर मुसल्लत नहीं हुआ। खुदा ने उन्हें
मुकर्रर किया है हम पर। एक सवाल यहाँ पैदा होता है, लोग कहेंगे बनी इसराइल खुदा के प्यारे थे, उन पे गैर कौम के बादशाह मुकर्रर क्यों किए? जो खुदा को नहीं मानते थे उनको भी मुकर्रर किया। पिछली बार हमने शाह फारस खोरस की बात की थी कि उसने खुद माना कि आसमान के खुदा ने मुझे ज़मीन की सारी बादशाहतें दी हैं और उसने मुझे हुक्म दिया है कि तू मेरे लिए ये काम कर। गैर कौम, खुदा को नहीं मानने वाले। और यशायाह की किताब का बाब नंबर 45 उसमें साफ लिखा है, खुदा ने शाह फारस खोरस की बाबत कलाम किया कि मैं तेरे रास्ते बनाऊंगा, तेरे सामने दूसरे बादशाहों की कमरें खुलवा दूंगा, वो तेरे सामने जेर हो जाएंगे, बादशाहतें तेरे ताबे कर दूंगा। तू मुझे नहीं पहचानता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तू हुक्मरान हो सब पर, और मैंने तुझे एक मकसद के तहत मुकर्रर किया है। खुदा की मर्जी है अपनी कौम पे किसको ले आए, खुदा की मर्जी अपनी मखलूकात पे किसको बादशाह बना दे, खुदा की मर्जी है कि अपनी कलीसिया पे किसको पासबान और किसको रहनुमा मुकर्रर कर दे, खुदा की मर्जी है कि हमारे माँ बाप किसको बना दे। ये खुदा की मर्जी है। हमने नहीं चूज किए होते अपने माँ बाप, अपने दादा दादी हम नहीं चूज करते, हम नहीं मुंतखब करते। हम में से किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता भी किसके घर पैदा होना है तूने। खुदा की मर्जी है कि जिसके बाबत उसने मुनासिब जाना कि आइजक उनकी औलाद बने, खुदा ने उनके घर मुझे भेज दिया। इसी तरह आप सबके लिए है। खुदा की मर्जी थी कि आप बहरीन में आए और अपनी अपने इदारे में, कंपनी में, गैराज में, शॉप में, किसी इदारे में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, हर तरह से जो भी आपकी खिदमतें हैं वो अंजाम दो। ये खुदा की मर्जी थी। खुदा ने आपके लिए रास्ते बनाए और आप यहाँ पे आए और काम करते हैं। और आपसे पहले जो आपके ऊपर जो मुकर्रर हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजर से लेकर कंपनी के मालिक तक, सब खुदा की मर्जी से हैं। खुदा ने उन्हें मुकर्रर किया हुआ है। हमारा फर्ज है हम उन्हें खुदा की तरफ से मुकर्रर किए हुए जाने, उन्हें बुजुर्ग और मोतबर जाने। खुदा का कलाम ये तकाजा करता है हमसे कि जिन्हें खुदा ने हमारे ऊपर हुक्मरान बना दिया है, हम उन्हें बुजुर्ग जाने। बुजुर्ग उम्र में बूढ़े को नहीं कहते। जो उम्र में बूढ़ा हो गया वो भी बुजुर्ग नहीं है। खुदा की उम्र नहीं बढ़ती। खुदा यकसा है। खुदा यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, लेकिन वो बुजुर्ग खुदा है। वो बुजुर्ग खुदा है, उसकी तो उम्र नहीं बढ़ती। वो यकसा है, हमेशा एक जैसा है। उसकी जिंदगी के दिन एक ही है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उम्र के बढ़ने से बुजुर्ग नहीं। हम एहतराम से, अकीदत से, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट और ऑनर से, जो हमसे बड़ी उम्र के होते हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ख़वातीन हैं या मर्द, उनके लिए लफ्ज़ बुजुर्ग इस्तेमाल कर देते हैं। खुदा के कलाम ने जिन्हें इख्तियारात दिए हैं, जिन्हें अथॉरिटी दी है, भले उनकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो, वो बुजुर्ग हैं। खुदा ने उन्हें बुजुर्ग करार दिया है, डिक्लेयर किया है कि उम्र उनकी जितनी भी है, जिन्हें खुदा ने इख्तियार दे दिया है, वो बुजुर्ग है। बादशाह से लेकर हमारी कंपनी में जो हमारे ऊपर अफसर हैं, वो कलीसिया में जो पासबान हैं, और पासबान के साथ खिदमत गुजार लोगों की जो एक गिरोह है, एक ग्रुप है, उसे आप पैरिश काउंसिल कह लें, उसे आप चर्च कमेटी कह लें, उसे आप सेशन कह लें, उसे आप चर्च बोर्ड कह लें, उसे कोई भी नाम दे लें। खुदा ने उन्हें मुकर्रर किया है और वो बुजुर्ग हैं। एहतराम में, अकीदत में, ओहदे में, रुतबे में, मर्तबे में खुदा उन्हें बुजुर्ग डिक्लेयर करता है और हुक्म है कि उनकी इज्जत करो। अब ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि आपके सामने पादरी आइजक इनायत खड़ा है। अपना तजर्बा देखें। घर में मियाँ बीवी लड़े हों, घर में माँ बाप के साथ लड़ाई हुई हो, चर्च में आ लो जी पादरी साहब ने ऐसा दुआ नहीं की थी, आए सा पादरी साहब ने कलाम ही सुनाया।
अब जिस घर में आग लगी हो, फायर ब्रिगेड नहीं जाएगी तो और वहां पे हम ढोल बाजे वाले लेके जाएंगे? जिस घर में आग लगी है वहां आग बुझाने वाली गाड़ी जाएगी कि वहां पे हम बारात वाली गाड़ी लेके जाएंगे? जवाब दीजिए। आग बुझाने वाली लेके जाएंगे ना। अब जो बंदा बीमार है वहां एम्बुलेंस जाएगी कि वहां पे हम एक बग्घी लेके जाएंगे कि आइए आपको शहर की सैर करा देते हैं? ठीक है। तो कभी क्या होता है ना, जब लोगों की जरूरतों का खुदा के खादमों को पता चलता है, वो उनसे उसी तरह से बात करते हैं, उनकी हालत, उनकी जरूरत के मुताबिक, उनके मसले को लेकर उनसे कलाम करते और उनसे बात करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही घर में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड लेके पहुंचते हैं कि भाई आग बुझा दें। हम बीमार हो तो एम्बुलेंस लेके पहुंचते हैं, आओ भाई आपको ले चलते हैं। आप पसंद नहीं करते कि मेरे घर में आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड क्यों लेके आ गए हो भाई? मेरे घर में तो ढोल तमाशे लेके आते, गाने बजाने वाले लेके आते। जो बंदा कैंसर का पेशेंट है उसको कहना तेरे जैसा तो बेहतरीन सेहत वाला इंसान ही कोई नहीं, तेरे जैसी सेहत वाला तो इंसान ही कोई नहीं, चल उठ दौड़ भाग, काम काज कर सारे, हालांकि वो कैंसर का मरीज है। तो कलीसिया चाहती है कि पासबान हम कैंसर के मरीजों को कहे कि आपसे बेहतरीन सेहत वाला दुनिया में ताकतवर तरीन इंसान है ही नहीं, और वो हमारी बीमारी हमें ना बताए, वो हमारी प्रॉब्लम डिस्कस ना करे, वो हमें वो तालीम ना दे जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि हमने तो बातें करनी है ना। चंदे लेता है हमसे, हम अपने मुल्क के बादशाह को बातें करते हैं, वजीर को बातें करते हैं, हुक्मरानों के खिलाफ बातें करते हैं, हक समझते हैं ना, जमहूरियत है भाई, हमारे वोटों से बने हैं तो हमें हक हासिल है उनसे, उनके खिलाफ बात करने का। खुदा के कलाम में ये हुक्म है कि कोई तुम पर, जो हुक्मरान खुदा ने मुकर्रर किया है, जिससे खुदा ने तुम पर इख्तियार, अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया है, हमें उसको बुजुर्ग जानना है, मोतबर जानना है, सुप्रीम जानना है और उसकी इज्जत करनी है। वो हमारे भले के लिए मुकर्रर होता है। रोमियो के खत में से 13वां बाब, जिसकी जिन आयत की तलावत हुई, लिखा है 3री आयत में, क्योंकि नेकोकार को हाकिमों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है, बस अगर तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ होगी। और हम नेकी करते नहीं तो तारीफ कहां से होगी? टैक्स हम देते नहीं तो मुल्क खुशहाल कैसे होगा? और हम हुकूमत को इल्जाम दे देते हैं। हम मुल्क गंदा करते हैं, कचरा फेंकते हैं गली में, मोहल्ले में, फिर कहते हैं जी बल्दिया वाले सफाई नहीं करते। अपना रोल हम पूरा नहीं करते और हम इल्जाम हुक्मरानों पे, रूलर्स पे, अथॉरिटीज पे लगा देते हैं कि जी वो कोई काम नहीं करते। तो कोई भी अथॉरिटी जिसे खुदा ने आपके ऊपर, मेरे ऊपर मुकर्रर किया, हमारा काम है उन्हें बुजुर्ग जानना, मोतबर जानना, उनकी इज्जत करना। और कईयों को शौक होता है मैं ना इसी जगह लग जाऊं, ये क्या काम है, मैं कर लेता हूं ना, इसमें क्या मुश्किल है, कोई वजन उठाना है, आसान सा काम है, कलम हिलाना है, बस जुबान हिलानी है, चलो ये काम कर लेते हैं। अब दुनिया में बड़े बड़े अपोजिशन लीडर्स, जब उनको हुकूमत मिलती है तो कानों को हाथ लग जाते हैं, जी अपोजिशन ही अच्छी है, हुकूमत में आके जो दुख सहने पड़ते हैं ना, ये दूर से ठीक है। जिन बातों की हम अपोजिशन में रह के मुखालिफत करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो वही काम करने पड़ते हैं, मजबूर हो जाते हैं। बड़ी कोशिश करता है हर इंसान कि मैं बादशाह बन जाऊं, मैं जीएम लग जाऊं कंपनी में, मैं अरबाब बन जाऊं, मैं स्पॉन्सर बन जाऊं, मैं मालिक बन जाऊं, ये बिल्डिंगें, ये कारोबार, ये रोजगार मेरा हो जाए, हुक्मरानी मेरे पास आ जाए, ये इख्तियार सारे मेरे पास आ जाएं। छीनने से नहीं मिलता, छीनने से इख्तियार नहीं मिलता। पूरी बिरादरी मिलकर 1000 सूरमा, पहलवान, वॉरियर्स, ग्लैडिएटर्स इकट्ठे कर लो, जंगजू इकट्ठे कर लो, 1000 आदमी बारात में लाके खड़े कर दो। 10,000 का आपने
रिसेप्शन अरेंज किया हुआ है जी, 10,000 लोगों का मजमा है शादी में, 1,000 आपने सूरमा जंगी मर्द आपने इकट्ठे किए हुए हैं, निकाह करके दिखा दो। इतने सारे लोग मिलकर निकाह नहीं कर सकते। वो एक दुबला पतला भले छोटे कद का हो, सेहत उसकी ठीक ना भी हो, कोई जिस्म के अंदर रोग भी हो, सेहत भी खराब, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर, शायद उसके पास अच्छी गाड़ी भी नहीं होगी, शायद किसी जगह साइकिल पे आएगा या कोई पुरानी मोटरसाइकिल पे आएगा, और वो आके अपने बैग में से बाइबल खोलेगा, गीत की किताब खोलेगा और निकाह का रजिस्टर खोलेगा, और खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से जब वो कार्रवाई शुरू करेगा और जब वो आमीन पे ख़त्म करेगा और वो ऐलान करेगा कि मैं आज से इस जोड़े को मियाँ और बीवी करार देता हूं, सिर्फ तब वो शादी हो सकती और उनकी औलाद जायज़ हो सकती। पूरा घराना, पूरी बिरादरी, पूरी कौम, पूरी फौज इकट्ठी कर लो, वो सारे मिलके भी उन्हें मियां बीवी नहीं बना सकते, वो इख्तियार नहीं ले सकते उनसे। हम सारी पाकिस्तानी कौम, भले हम जितनी मर्जी अपने अंदर जोश और वलवला और जज्बे लगाते रहे, जब अभिनंदन वापस कर दिया तो कर दिया, सारा मुल्क भी वापस नहीं ला सकता उसे, क्योंकि किसने भेजा उसे? वजीर आजम ने कह दिया मैं वापस भेज रहा हूं, कोई रोक नहीं सकता उसे। पूरा मुल्क मिल जाए, हड़तालें करो, जुलूस निकालो, रोक नहीं सकते, क्योंकि जिसको इख्तियार है मुल्क में उसने फैसला कर लिया। आप छीन नहीं सकते उसका इख्तियार, आप उसकी जगह नहीं हो सकते। अबी सलोम ने अपने बाप का इख्तियार छीनना चाहा था, पहले भी हम इस पे बात कर चुके। अबी सलोम दाऊद का बेटा था, उसने चाहा कि मैं अपने बाप की जगह हुक्मरानी करूं, और उसने कुर्सी भी लगा ली, शहर के बाहर बैठना शुरू कर दिया, लोगों से कहता कभी मैं तुम्हारे ऊपर मुकर्रर होता, मैं तुम्हारा इंसाफ करने वाला होता तो कब का तुम्हारे फैसले कर चुके होता, क्या करूं, मेरे इख्तियार में नहीं है, अगर मुझे इख्तियार मिल जाए तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। और फिर उसने लोग अपने साथ मिला लिए और अपने बाप से हुकूमत छीनना चाहिए। खुदा को पसंद नहीं आई ये बात। जिसे मैंने चुना है सिर्फ वो हुक्मरानी करेगा, जिसे मैंने चुना है वो इख्तियार इस्तेमाल करेगा, जिसे मैंने मुकर्रर किया है वो अथॉरिटी है, कोई अपने आप नहीं ले सकता। कोई आपके घर में आ जाए जहां आपका इख्तियार चलता है, आप माँ हैं या बाप हैं, या आप घर में बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, वहां मैं भी आ जाऊं तो मैं वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता जो आपके हैं। मुझे लेना भी नहीं चाहिए ये इख्तियार। माँ बाप अपनी औलाद को डांट रहे हैं तो मैं कौन हूं बीच में आने वाला? माँ बाप अपनी औलाद को अच्छी चीज़ों पे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मैं कौन हूं कहने वाला जी तुसी तो सारे बेवकूफ़ हो, तो तो बच्चा है ही बहुत ख़राब, आप तो ऐसे इसकी तारीफ़ें कर रहे हो। मैं कौन हूं किसी को रोकने वाला, टोकने वाला कि आप अपने घर में क्या करो? हम किसी की जगह ले नहीं सकते अपने आप, किसी का इख्तियार छीनने की कोशिश ना करें। खुदा का कलाम ये सिखाता है, जिसे खुदा ने जो रुतबा दिया है, जिसे खुदा ने जो मुकाम दिया है, जिसे खुदा ने जो इख्तियार दिया है, जिसको खुदा ने जो अथॉरिटी दे दी है, कोई और ना उसमें टांग अड़ाए, ना उसको छीनने की कोशिश करे और ना उससे खुद अपने हाथों में लेने की कोशिश करे। पिछली बार बात की थी कि हम तो अपने स्कूल में अपने उस्ताद की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, मार पड़ती थी। हम अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में अपने बॉस की कुर्सी पे, उसके ऑफिस में, उसके केबिन को उसकी मर्जी के बगैर यूज नहीं कर सकते। और जो मेरी उम्र के उससे बड़े लोग हैं उनको तजर्बा होगा इस बात का कि घर में बाप के लिए या दादा के लिए जो बिस्तर मुकर्रर है वो किसी और को सोने के लिए नहीं मिल सकता। हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। घर में जो बाप का बिस्तर है उस पे कोई और नहीं लेट सकता। जो चीजें बाप के लिए मखसूस हैं वो सिर्फ वही इस्तेमाल करेगा। घर में कोई और उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जो मेरी उम्र या उससे बड़े लोग हैं उनके तजुर्बे में होगी ये बात, लेकिन अब के जो हैं उनका तजुर्बा मुख्तलिफ हो सकता है।
لیکن ہم نے اپنے گھر میں یہ ایکسپیرینس کیا، یہ تکیہ ابا جی کا ہے، یہ کمبل ان کا ہے، یہ چادر ان کی ہے، یہ تولیہ ان کا ہے، یہ تھال ان کا ہے، یہ گلاس ان کا ہے، یہ کندھے پہ رکھنے والا کپڑا ان کا ہے، یہ سر پہ پہننے والی کیپ ٹوپی ان کی ہے، اور یہ چپل اور یہ جوتا ان کا ہے۔ اور اگر ہم نے چوری چھپے صرف انجوائے کرنے کے لیے کبھی اس گلاس میں اکیلے پانی پی لینا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور کسی بہن بھائی نے دیکھ لینا تو شکایت لگ جانی، اس نے آج ابا جی کے گلاس میں پانی پیا، مطلب کہ کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اتھارٹی گھروں میں ہوتی تھی، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، ایک کیا وہ خوبصورت وقت تھا۔ ابھی کچھ لوگ میرے جیسے انجوائے کرتے ہیں اس بات کو، گھر میں کسی بڑے نے آنا تو اس نے آواز نکالنی تو کیا ہونا، گھر کی بہو بیٹیوں نے کپڑے کھینچ لینے، انہوں نے کونڈ کاٹ لینا، گھونگھٹ اوڑھ لینا، اپنا چہرہ چھپا لینا۔ اب وہ آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی باتیں، وہ ختم ہو گئی، لیکن کیا خوبصورت باتیں تھیں وہ، حیا تھا، شرم تھی ان میں، ایک دوسرے کی عزت کا یہ معیار تھا۔ تو ہم اپنے گھروں میں ہم نے دیکھا کہ باپ کا اختیار ہم نہیں لے سکتے، تو گھر سے باہر بھی ہم کسی کے انڈر ہیں، کسی کے اختیار میں ہیں، کسی کی اتھارٹی میں ہیں، تو اس کا اختیار بھی لینے کی کوشش نہ کریں، خدا پسند نہیں کرتا۔ ابلیس نے یہ کام کیا تھا، اس نے کہا کہ میں اپنا تخت خدا سے بھی اونچا لے جاؤں گا، میں خدا کے تخت سے بھی اوپر چلا جاؤں گا، اور پھر وہ وہاں گرا کہ جہاں سے واپس نہیں اٹھ سکتا۔ اس نے کہا میں اکیلا کیوں ہوں، آیا سانپ میں سمایا حوا کے پاس، کہا خدا نے ایسے ہی نہیں منع کیا تمہیں کہ یہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ اسے معلوم ہے جس دن تم کھاؤ گے مرو گے نہیں، تمہاری عقل روشن ہو جائے گی اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، تم خدا بن جاؤ گے۔ خدا بننے کی خواہش آ گئی حوا میں، خدا کے اختیار، اس کی کرسی، اس کے جلال اور اس کی قدرت، اس کے مقام کو لینے کی خواہش آ گئی۔ گناہ اصل میں یہ ہے، وہ خواہش کہ ہم خدا کی جگہ لے لیں۔ شیطان نے بھی یہی گناہ کیا کہ میں خدا کے تخت سے اوپر ہو جاؤں گا، میں اونچا ہو جاؤں گا، اپنا تخت بہت اونچا کر لوں گا، ساری دنیا میرے تابع ہو جائے گی۔ خدا نے اسے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ تیری جگہ نہیں ہے، وہ صرف باپ اور بیٹے اور روح القدس کا مقام ہے کہ ساری کائنات اس کے آگے جھکے۔ تو اس نے آدم اور حوا میں بھی یہی خواہش پیدا کر دی کہ تم بھی خدا کی طرح بننے کے لیے کوشش کرو۔ تو جو کسی اختیار والے کا مقام خود سے لینے، چھیننے، سنیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا انہیں سزا دیتا ہے، انہیں پسند نہیں کرتا۔ چوتھی بات، ان پر لعنت نہ بھیجیں، انہیں برا نہ کہیں۔ جنہیں خدا نے قوم میں سردار مقرر کیا ہے، قوم میں اختیار والے اتھارٹی مقرر کیا ہے، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ان پہ لعنت نہ کرو۔ خروج میں 22واں باب 28ویں، تو اپنی قوم کے سردار پر لعنت مت کر۔ اور اعمال 23واں باب پہلی 5 آیات جب پڑھتے ہیں تو وہاں پولس رسول کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ سردار کاہن کھڑا ہے، آرگیومنٹ ہوتا ہے، تو پولس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سردار کاہن ہے، کیونکہ وہ اپنی پوشاک میں نہیں تھا، وہ اپنے یونیفارم میں، اپنے لباس میں، اپنے ڈریس کوڈ میں نہیں تھا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ تو قوم کے سردار سے اس طرح بات کر رہا ہے، تو لہجہ پولس رسول کا دھیما پڑ گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ قوم کا سردار ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تو اپنی قوم کے سردار کو برا نہ کہے۔ مخالفت تھی۔ سردار کاہن یہودی،
साउल मसीही हो गया और पौलुस बना, और रसूल है, मसीह का शागिर्द बन गया। और मसीह के शागिर्द होने के सबब से, उसका खादम और अंजील क्या मुनाद होने के सबब से उस पर केस चल रहा है, उसको सताया जा रहा है, तो उस मामले में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बहसबाजी चल रही है, तो भी उसने कहा कि नहीं, तू मेरी कौम का सरदार है, तुझे बुरा नहीं कहना। तो जो हमारे ऊपर ऑफिसर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, रूलर्स हैं, पेशवा हैं, लीडर्स हैं, हमें ना उन पर लानत करनी है और ना उन्हें बुरा कहना है। अगर कहें तो फिर खुदा मुकाबला करता है। इंसान हो सकता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हमारा मुकाबला ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे ख़ानदान में 50 लोग हैं और वो बंदा, वो ख़ानदान जिसको हमने लानत करनी है और बुरा कहना है, वो अकेला है। वो जिस्मानी ताकत में, अपने रुपए पैसे में, अपने असर और रसूख में मुकाबला करने के लायक ना हो, लेकिन चूंकि खुदा ने उससे आप पर सरदार और लीडर और सुपीरियर और बॉस मुकर्रर किया है, अथॉरिटी और हुक्मरान मुकर्रर किया है, अगर आपने उसके खिलाफ जुबान खोली है तो खुदा इसका हिसाब लेता है। इंसान क्या लेगा? खुदा लेता है हिसाब। तो ये बात हमें जहन में रखनी है कि हम जिनके मातहत खुदा ने हमें रखा है, हम उन पर ना तो लानत करें और ना उनके बारे में बुरा कहें। उनकी मुखालिफत, उनकी मुज़ाहमत ना करें, उन्हें अपोज या रेजिस्ट ना करें। जिन्हें खुदा ने हुक्मरान मुकर्रर कर दिया है, उनको फैसले करने का इख्तियार हासिल है। जो उनकी मुखालिफत करता है वो खुदा की मुखालिफत करता है। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और वो जो मुखालिफ हैं वो सजा पाएंगे। रोमियो 13वां बाब है और दूसरी आयत। जिन्हें खुदा ने हमारे ऊपर हुक्मरान, पेशवा, लीडर, कायद, रूलर, सुपीरियर मुकर्रर कर दिया है, अगर हम उनकी मुखालिफत करते हैं, हम उनको रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं, उनके खिलाफ जाते, खिलाफ खड़े होते हैं, तो खुदा के इंतजाम के खिलाफ होते हैं और फिर खुदा उसकी सजा देगा। अब जहां कहीं भी कोई हमारे ऊपर इख्तियार रखता है, हमारे ऊपर बॉस है, हमारे ऊपर सीनियर है, हमारे ऊपर इख्तियार रखता है, हमारे ऊपर अथॉरिटी है, तो हमें उसके बारे में जुबान इस्तेमाल करते हुए बड़ा सोचना पड़ेगा कि कहीं हम खुदा के मुखालिफ तो नहीं जा रहे। हमें खुदा के मुखालिफ नहीं जाना। अगर मुखालिफ जाएंगे तो खुदा सजा देगा। सो अपने ऊपर जिनको इख्तियार खुदा ने दिया हुआ है, हमारे ऊपर जो मुख्तार मुकर्रर हैं, जो हुक्मरान हैं, जो रूलर्स हैं, हमें उनकी इज्जत करनी है, उन्हें मोतबर जानना है, ऑनर करना है, उनको लानत नहीं करनी, बुरा नहीं कहना और उनके खिलाफ नहीं जाना, उनकी मुखालिफत या मुज़ाहमत नहीं करनी, उनके फर्मा बरदार और ताबे रहना है, उनको ओबे करना है और सबमिट करना है। जो हुक्म वो दें वो मानना है, जो फैसला वो करें उससे कबूल करना है। हमारी बाबत अगर वो कोई हुक्म सादर करें तो उससे मानना है। रोमियो 13वां बाब पहली आयत, हर शख्स आला हुकूमतों के ताबे रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं, इसलिए हर शख्स आला हुकूमतों के ताबे रहे। इसी तरह तीतुस 3 बाब और पहली आयत है, इब्रानियों 13वां बाब है और 17वीं आयत है कि जिन्हें खुदा ने तुम्हारे ऊपर पेशवा, लीडर्स, शेपर्ड्स, पास्टर्स,
हुक्मरान, रूलर्स, अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया है, उनके ताबे रहो, उनका हुक्म मानो। और पतरस का पहला खत है, उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयात। खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है, और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं। इसी तरह इब्रानियों में 13वां बाब देखिए और आयत नंबर 17 है, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। जो लोग बातें करते हैं, मुखालिफत करते हैं, बुरा मनाते हैं, इधर उधर चुगली बुराई बदगोई कर देते हैं ना अपने पासबान की, पता तो चल जाती है, फिर उनकी खिदमत पासबान भी इंसान है, खुशी से तो नहीं करता ना। क्या कहेगा, ये मेरे बारे में इतना बुरा कहते हैं, मैं इनके बारे में क्यों खुशी से खिदमत करूं। अगर आपको उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो फिर मजबूरी में करेंगे कि चलो कर देते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम्हारे पेशवा, जब तुम्हारे लीडर, जब तुम्हारे उस्ताद, जब तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारी तरफ से बदगुमान हो जाएं, तो फिर वो खुशी से काम नहीं करेंगे, मजबूरी से करेंगे, लाचारी से करेंगे, और उनके काम करने से काम हो तो जाएगा लेकिन तुम्हारे फायदे नहीं होंगे, फायदे नहीं होंगे। किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप प्लीज मेरी इस काम में मदद कीजिए, ये वजन ज्यादा है, मुझे उठाने में मदद कीजिए, जाओ मैं नहीं करता, हो गई बात। आपने किसी भी तरह उठा लिया और फोटो बनवाने के लिए बंदा आ जाता है कैमरा लेके, सेल्फी लेके, हाथ लगा के, होता है ना आजकल, किया कराया कुछ नहीं होता और सेल्फी बना लेते हैं साथ में। फायदा क्या मिला उसके उस अमल से? कोई उसको एप्रिसिएशन, शुक्रगुजारी, बरकत, तारीफ नहीं मिलेगी। कोई काम जो हम मजबूरी और लाचारी से करते हैं वो काम हो तो जाएगा लेकिन उसकी बरकत और उसकी जो उसका फायदा है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिन्हें खुदा ने आपके ऊपर मुकर्रर किया हुआ है ना, किसी भी कैपेसिटी में, आप उनके ताबे रहें, उनके बारे में ऐसी बात ना करें कि जिससे वो बदगुमान हो जाएं, उनका दिल टूटे, वो मायूस हो जाएं, परेशान हो जाएं और फिर वो सच्चे दिल से खिदमत ना करें। अपने पेशवाओं के फरमाबरदारी करें, उनके ताबे हों। हुक्मरान हैं, ऑफिसर हैं, बॉस है, खानदान में सरबराह हैं, सबके फरमाबरदार और ताबे हों और उनकी खैर चाहें। स्कूल में हम पढ़ते थे तो रियाजी का मजमून सबको पसंद होता है, कितना अच्छा होता है। सर जी बैठे हुए रियाजी वाले, उनके सिवा किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, ये यकीन है मुझे। जो मैथ्स के टीचर है ना, उनके सिवा मैथ्स सब्जेक्ट किसी और को अच्छा नहीं लगता। तो पता, मैं अपनी बात आपको बताता हूं, जब 5वीं जमात में बोर्ड के एग्जाम होते थे और मैथ्स के टीचर के लिए हम कहते थे, वो टांगे पे आते थे, एक गांव से आती थी, तो हम दुआ करते थे रास्ते में टांगा टूट जाए, वो आ जाए ही ना, वो बीमार हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आके जो टेस्ट लेना है हमें आना नहीं, तो फिर फेंटा, फिर सोटियां पड़नी है और फिर जो जनाब चपेड़े और मुक्के होने हैं। उससे बेहतर है कि उनका टांगा टूट जाए, वो बीमार हो जाएं और वो स्कूल ना आए। ये अपने तजर्बे की बात आपको बता रहा हूं, ठीक है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, पादरी ने कुछ हो जाए ना तो मेरी बारी आ जाए। मेरा बड़ा दिल है, मेरा बड़ा दिल है स्टेज पे खड़े रहने का, मेरा बड़ा दिल है पूरे 1.25 घंटे ऊपर ही बैठने का, भले एक साइड पे खड़ा हो जाऊं, बस ये शौक है। बड़ा दिल है मेरा कि बादशाह को कुछ हो जाए,
बेचारा था, माँ से पूछता है, माँ गांव का नंबरदार, पंचायत का सरपंच हिंदुस्तानियों के लिए, गांव का नंबरदार समझते हैं ना सारे, अगर मर गया तो कौन बनेगा उसकी जगह? माँ ने कहा उसका बेटा। अगर वो भी मर गया तो बेटा उसका बेटा। अगर वो भी मर गया तो उसका कोई भाई भतीजा, कोई खानदान का। वे कहता अगर वो भी मर गया, उसने कहा बेटा समझ गई, सारा गांव भी मर जाए तू नहीं बनेगा। तो हम दूसरों के बारे में बुरा चाहते हैं कि इनको कुछ हो ही जाए ना तो बेहतर है। हम बादशाहों से लेकर अपने टीचर्स तक हम ये ख्वाहिश करते हैं कि उनको कुछ हो ही जाए, उनको कुछ हो जाए। और पादरियों के लिए तो आम बात होती है, वो एक ही गल है, चार बंदे रल के असी जो त्राना है तो नस जाना इन्हें। ये क्या बात है, भाग जाएगा, इसका क्या है? हम खैर चाहें, बुरा ना चाहें। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि गैर कौम हुक्मरान था, शाह फारिस, उसके शहर में सोसन में मर्दकी नाम का यहूदी था। बादशाह के बारे में महल के दो मुलाजमों ने साजिश की, इसको जहर दे देते। उसके कान में बात पड़ गई, उसने बादशाह को बात पहुंचा दी। ये नहीं कहा कि ये तो गैर कौम है, ये तो मेरे मजहब का बादशाह नहीं है, ये तो हमारे ऊपर नाजायज काबिज है, हमें गुलाम बना के रखा हुआ है उसने। नहीं, उसने कहा मेरे बादशाह की जिंदगी लेने के लिए साजिश है, तो मैं बादशाह तक खबर पहुंचाऊंगा। मर्दकी ने बादशाह तक खबर पहुंचाई। लड़की को उठाकर ले गए थे अरामी, सीरियन, आज के दौर का शाम, सूरिया जिसे हम कहते हैं, बाइबल में उसका नाम अराम है। वहां का सिपा सलार था, आर्मी चीफ था, नेमान उसका नाम था, कोड़ी था। उसके घर में इस्राएली लड़की को ले गए थे उठाकर, गुलाम बनाकर, कब्जे में लेकर, घर में मुलाजमा रखी हुई थी। छोटी लड़की थी इस्राएली। उसको पता चला कि मेरा मालिक जो है, जिसके हां मुझे रखा गया है वो गैर कौम, काबिज है, हम पे हुक्मरानी करते हैं, तो कोड़ी है। बीबी से कहा काश के मेरा मालिक मेरे वतन में होता और मेरे वतन का नबी उसे कोर से शिफा दे देता। उसने ये नहीं कहा मर छेती, मुझे क्या, मैं नहीं बताऊंगी कि शिफा कहां से मिल सकती है। उसने कहा जिस खुदा को मैं मानती हूं वो कहता है कि हुक्मरान का उनकी खैर चाहो, उनकी इज्जत करो, उनके ताबे रहो। मैं अपने हाकिम की, अपने बॉस की, अपने अरबाब की खैर चाहूंगी। उसके कोर से शिफा के लिए उसको कहा मेरे वतन में जा, अलीशा नबी के पास जा, और नेमान कोर से ठीक हो गया। खुदा के कलाम में ये गवाहियां हैं। नहमिया बादशाह का साकी था, बादशाह को प्याला दे रहा है। बादशाह ने कहा खैर तो है, तेरी तबीयत ठीक है, लेकिन तेरे चेहरे का जो रंग है वो उड़ा हुआ है, तेरे चेहरे के तासुरात ठीक नहीं है। उसने कहा बादशाह तू जीता रहे, तेरी सलामती हो, तेरी खैर हो, तू हमेशा जीता रहे। मैं तेरा गुलाम बना हुआ हूं, लेकिन मैं तेरी खैर मांगता हूं। हमारे ऊपर हुक्मरान कोई गैर कौम भी हैं, हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले, हुक्म चलाने वाले, इख्तियार रखने वाले कोई भी हैं, उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी कबीले, किसी फिरके से भी है, किसी कौम से भी है, जिन्हें खुदा ने हम पर हुक्मरान और पेशवा बना दिया है, हमारा फर्ज है उनकी खैर चाहें, उनका बुरा ना चाहें। लेकिन इंसान क्या है ना, वो तो जिसका खाते हैं उसी पे लात उठाते हैं। जो आपकी खिदमत करता है आप उसी के बरखिलाफ हो जाते और उसकी बुराई चाहते। हम सब इंसान ऐसे, किसी की भलाई करना तो हमें आता नहीं है। पौलुस रसूल ने भी कहा जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो होती नहीं मुझसे, और जिस बदी का इरादा नहीं भी करता वो हो जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन कोशिश करें कि जिन्हें खुदा ने हम पर मुकर्रर कर दिया है,
آپ کے خاندان سے لے کر قوم تک، بشمول کلیسیا، آپ کی کمیونٹی اور آپ کا باس، آپ کا ادارہ، آپ کا کاروبار، ہر جگہ آپ ان کی خیر چاہیں، اپنی کمپنی کی خیر اس طرح سے چاہیں اے سی جاتے ہوئے بند کر دیں، بجلی بند کر دیں، اپنے آفس کا، کمپنی کا اگر آپ کو کچھ ملتا ہے تو اس کو احتیاط سے استعمال کریں۔ یہ مت سوچیں کہ چلو مل ہی رہا ہے نا کمپنی سے، کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا جیب سے دینا ہے۔ خیر چاہیں اپنے حکمرانوں کی اور پھر ان کے لیے دعا کریں۔ تیموتھیوس کا پہلا خط ہے اور اس کا دوسرا باب پہلی 3 آیت ہے۔ دعائیں، التجائیں، مناجاتیں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، کہ وہ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے ہمارے لیے بہتر فیصلے کر سکیں۔ تیموتھیوس کا نام لکھا ہوا پہلا خط ہے اور اس کا دوسرا باب ہے۔ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں، دعائیں، التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبے والوں کے لیے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر حکمرانوں کے لیے ہم دعا نہیں کریں گے تو ہمارے ملک میں امن نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں چین نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے اوپر جو حکمران ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ سب سے آسان کام ہے یہ دعا کرنا، سب سے آسان کام۔ پہلے ہم سیکھ چکے ہیں اس بارے میں کہ ہمیں حکومت کو، حکمرانوں کو ٹیکس بھی دینا ہے، ضرور دینا چاہیے ہمیں ٹیکس۔ گورنمنٹ کے جو ڈیوز پے کرنے ہوتے ہیں وہ ہم ضرور، حکومت کو جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ ضرور کریں، دعا بھی کریں۔ جو ہمارے اوپر حکمران ہیں، ہمارے اوپر پیشوا ہیں، ہمارے اوپر سربراہ ہیں، ہمارے اوپر لیڈر ہیں، ہمارے اوپر خدا نے انہیں اتھارٹی، اختیار دیا ہوا ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ وہ خدا کے خوف میں رہیں، وہ ہمارے اوپر اچھا انتظام کرتے رہیں، ہمارے لیے اچھے فیصلے کرتے رہیں، ہماری اچھی دیکھ بھال کرتے رہیں، تاکہ ہم اچھی طرح سے زندگی گزار سکیں۔ اور معاملات میں خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کیا کیا؟ میں پہلے بھی اس بارے میں سکھا چکا ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو تابع کیا، زمینی ماں باپ کے تابع کیا۔ لوکا کی انجیل میں دوسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ بدن میں، حکمت میں بڑھتا گیا، خدا اور انسان کی مقبولیت میں بڑھتا گیا اور اپنے ماں باپ کے تابع رہا۔ لوکا کی انجیل دوسرا باب ہے، وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہا، حالانکہ وہ تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ وہ تو کسی کے تابع اس کو رہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ساری دنیا تو اس کے آگے تابع ہوگی نا، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہا۔ پھر جس نبی کو خدا نے اس سے پہلے پیدا کیا تھا، جس نبی کو پہلے کام پہ لگایا تھا، وہ اس نبی کے تابع رہا۔ یوحنا نے کہا میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے قابل نہیں اور تو آیا ہے مجھ سے بپتسمہ لینے، میں تو خود چاہتا ہوں کہ تو مجھے بپتسمہ دے دے اور مجھے افضل بنا دے، لیکن یسوع نے کہا کہ تو یہ ہونے دے، مجھے اس راست بازی کو، خدا کے اس حکم کو، اس منصوبے کو اسی طرح پورا کرنا ہے کہ میں تیرے تابع ہو جاؤں، میں تیرے ہاتھ سے بپتسمہ لوں۔ لوکا چوتھے باب میں 16 سے 20 آیت، یسوع عبادت خانے میں جاتا ہے تو خود سے سارے کام نہیں کرتا، چل پیچھے ہو بھائی، پاسبان، پاسٹر صاحب، کاہن صاحب پیچھے ہٹو، میں آ گیا ہوں۔ نہیں، اس نے کبھی نہیں چاہا کہ ان کو کچھ ہو جائے تو میری باری لگ جائے۔ جب باری دی گئی تب اس نے خدمت انجام دی۔ اور پھر یوحنا کی انجیل میں 19واں باب ہے، خداوند یسوع مسیح پلاطوس حاکم کے سامنے کھڑا ہے، اس نے کہا تو نہیں جانتا مجھے اختیار ہے تجھے چھوڑنے کا بھی اور تیری جان لینے کا بھی۔ خداوند یسوع نے بڑے اعتماد کے ساتھ اسے جواب دیا، اگر یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ مطلب اس کا آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ یسوع نے کہا کہ چونکہ آسمان سے تجھے مقرر کیا گیا ہے اس لیے میں تیرا حکم مانتا ہوں۔ حکم کیا اس نے دیا؟ اسے صلیب دے دو، چڑھ گیا۔ یہ نہیں کہا تو کون مجھے صلیب کا حکم دینے والا۔ اس نے کہا اگر تجھے اوپر سے نہ یہ حکم اختیار دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا، میں تیرے اختیار کو مانتا ہوں کیونکہ تجھے آسمان سے یہ اختیار دیا گیا ہے۔
اور جو اس کو حکم پروانہ دیا گیا اس کے لیے، اس کو کوڑے لگاؤ، کھا لیے، اس کو مارو، مار کھا لی، صلیب اٹھواؤ، اٹھا لی، اس کو کیل لگا کے صلیب پہ گاڑ دو، گڑ گیا۔ حکم مانا، تابع رہا اعلی حکومت کے، اس کے اختیار کو مانا، تسلیم کیا، قبول کیا، کیونکہ باپ کی یہ مرضی تھی کہ میں تجھے ان کے اختیار میں دے رہا ہوں تاکہ وہ تیرے ساتھ یہ سب کچھ کریں، اور اس کو قبول کیا۔ یسوع کی پیروی کریں، وہ سب چیزوں کا، کائنات کا مالک، خداوند، بادشاہ ہونے کے باوجود زمین پہ آتا ہے، نہ صرف اپنے ماں باپ کے تابع رہتا ہے بلکہ اپنے دینی مذہبی پیشوا جو تھے ان کے بھی تابع رہا، وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے نبی کے تابع رہا، اور پھر جسے رولر، حکمران، حاکم بنایا تھا خدا نے، یسوع اس کے بھی تابع رہا، اس کے بھی حکم کو اس نے قبول کیا، بغاوت نہیں کی۔ تو یسوع کی پیروی کریں، ہم فالو کریں اس کے پرنسپل کو، اس کے پیٹرن کو، کہ جنہیں خدا نے ہم پر مقرر کیا ہے، ہم ان کے تابع ہوں۔ اور اگر کچھ بننا ہے، دل کرتا ہے نا میں بھی کچھ بن جاؤں، ہم بھی باپ کی طرح گھر میں روب رکھیں، ہمارے لیے بھی بستر الگ سے لگے، ہمارے لیے بھی سیٹ الگ سے ہو کہ اس پہ ابے نے بیٹھنا، بس ہمارا بھی جب داخلہ ہو گھر میں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، تو سارے سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، عورتیں دوپٹے سیدھے کر لیں، آدمی اپنی سیٹ درست کر لیں، پادری صاحب آ گئے۔ دل کرتا ہے نا لوگ ایسی عزت کریں۔ یہ چھوٹا جا، 39 سال عمر ہے اس کی، میں 65 کا ہوں، اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے مجھ سے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ خدا نے اس کی عزت بنائی ہے۔ اگر آپ کو عزت چاہیے تو خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، حلیمی سے رہو، عاجزی سے رہو۔ جو جوتیاں صاف نہیں کر سکتا اپنے بڑوں کی، اس کی کل کوئی اور جوتی صاف نہیں کرے گا۔ جو کسی کو اٹھ کے سلام نہیں کر سکتا، کوئی اس کو سلام نہیں کرے گا۔ کوئی کسی سے عزت سے بات نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بھی عزت سے بات نہیں کرے گا۔ کوئی کسی کے حکم کے تابع نہیں رہنا چاہتا تو کل کو کوئی بھی اس کے حکم کے تابع نہیں رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ حکمران بنو تو پہلے اچھی رعایا بنے۔ اچھا استاد بننا ہے تو پہلے اچھے شاگرد بنے۔ اچھا پاسبان بننا ہے تو پہلے اچھی کلیسیا بنے۔ اچھا حکمران بننا ہے تو پہلے حکم کے تابع رہنا سیکھیں، اور خدا ایک وقت پر آپ کو سرفراز کرے گا۔ یوسف کی مثال دیکھ لیجئے، اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے نہیں کہا کہ میں اپنے باپ کا بڑا لاڈلا ہوں، میں تمہارے گھروں میں غلامیاں نہیں کروں گا، میں قید میں نہیں جاؤں گا۔ قبول کر لیا، جو کرتے ہو کر لو، اب تمہارے اختیار میں ہوں۔ لیکن خدا نے اسے اگلے ہی لمحے مصر کا حکمران بنا دیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس واسطے خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہم آج حلیم، عاجز، فروتن، جھکنے والے ہو جائیں گے تو خدا ہمیں بھی بلند کر دے گا، لوگ ہمارے سامنے بھی جھکنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے جھکنا سیکھیں، نیچا ہونا سیکھیں، پست ہونا سیکھیں، عاجز اور حلیم ہونا سیکھیں۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ یہ خدا کا کلام تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہم اپنے حکمرانوں، پیشواؤں، استادوں، بزرگوں، اتھارٹیز جو ہم پہ اختیار رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، انہیں اپنائیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پاک نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو اپنے کلام میں سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ تو نے ہمیں جہاں اختیارات دیے ہیں وہاں ہمیں کئی لوگوں کے اختیار میں رکھا ہے۔ سو خداوند آج جو باتیں تو نے ہمیں سکھائی ہیں، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کی روشنی میں ان کے تابع رہیں جو ہم پر اختیار رکھتے ہیں، حلیم، عاجز اور فروتن ہو جائیں، تاکہ تیرے ٹھہرائے وقت پر
ہم سرفراز کیے جائیں، ہماری زندگیوں سے تو جلال پائے، ہم یسوع کے نقش قدم پر چلیں اور تیری مرضی کو پورے کرتے رہیں، یسوع مسیح کے نام سے۔